So I would like to request CA Chetan Jagetia to please escort the faculty for the session, Mr. Nitin Dharmawat. Please, sir. Now I would request CA Sanjeev Shah to introduce the faculty for this session. Good morning, friends. I would like to introduce the speaker of this session, Mr. Nitin Dharmawat. Nitin is a co-founder of Aurum Capital. He started his equity journey 30 years back and end up, as a hobby he has started, but then end up with pursuing CFA from US, and he is also a charter holder of CFA. Nitin brings the rich industrial experience that helps understanding business complexities, the tipping points, and the background, how the business runs. He has a rich experience of working with L&T and CRISIL kind of big organizations. Nitin believes in going beyond number crunching to identify a lot of insightful things. He focuses on long-term values, investment ideas with sound fundamentals, business operations, competitive landscape of the companies, the governance process, the background of the promoters. These all are very, very needed insight for the companies to suggest for long-term. Nitin has, to his credit, several multi-baggers he has suggested. He also identified many fraudulent companies. This is very important, that you identify the fraud companies very early, and that has helped investor losing the money. As a part of social responsibility, he writes so many blogs, articles, videos, and carry out a lot of investor sessions for the benefit of small investors. He is a regular contributor to all business portals and various business channels as well. He is a continuous learner, and he believes that everything else can stop except the learning. So with this, I introduce Nitin for carry out further this session. Thank you. Now I would request CA Chetan Jagetia and CA Sanjeev Shah to present our guest with the memento. Now request Mr. Nitin to please take forward the session. Okay. Am I audible now? Yes. Fantastic. So, thank you for coming on this Saturday. अभी कौन-कौन मल्टीबैगर स्टॉक चाहता है इधर? अरे यार, अहमदाबाद के लोग मल्टीबैगर स्टॉक नहीं चाहते, सब लोगों के हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? अभी मैं आई एम देयर बिटवीन यू एंड लंच, आई नो, but I'll have a lot of interesting stories. Though I may not be giving you multi-bagger stocks, but I can tell you the road towards such stocks. Okay? So our topic is, और हिंदी में चलेगा ना? Perfect. तो मेरी जर्नी है ना अहमदाबाद से स्टार्ट हुई है, प्रोफेशनल जर्नी, इसलिए बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के अहमदाबाद. जब मुझे बोला एकदम लास्ट 3 दिन पहले कि आना है और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई कुडंट से नो, बिकॉज अहमदाबाद को ना कैसे कर सकते हैं. यहाँ का एंथुजियाज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, चलेंगे यहाँ पे. एक एनर्जी लेवल भी बहुत अलग है अहमदाबाद में. सो टॉपिक है बाइंग द पेसिमिज्म एंड सेलिंग द ऑप्टिमिज्म. आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू अटेंडेड माय प्रीवियस प्रेजेंटेशन. Part of it I covered in CFA Society also. But I'll have some new slides, some new content over here. But before I do that, there is an important disclaimer. What it says that basically we are a SEBI registered research analyst firm. There can be some case studies over here, but these are not recommendation of any sort. Buy, sell, hold, no recommendations. It's only case studies. Some of the data might be little older, so that they are just case studies to present the point. We may or may not have recommended, we might be having some ownership, we may do contrary to what I am saying. So just be sensitive to all these facts. Very briefly about our company, Aurum Capital. It's a SEBI registered research analyst firm, as I said.
and we are not taking new clients, new subscribers. We stopped renewals, so there is no pitching over here of any sort. We are closing down that aspect of the business. Now, buying the pessimism and selling the optimism. This is a topic, and agenda includes timing the market, the wealth creation formula, color decoupling. So it's a very important slide, color decoupling. Game is change. So why game is change? Why I'm saying game is change? Human behavior. I think this is one of the most important thing in investment these days. Human behavior was important. Human behavior is more important now, considering the changes which are happening. As I said, game is change. FOMO and follow. What is pessimism? How does pessimism in market, or what does pessimism in market mean? What is optimism, and what does optimism in market mean? Case studies. So case studies include pharma company, hotel sector, SME sector. So I included 3-4 case studies together over here, and there are some more case studies in between. And then framework and summary. So framework for pessimism and optimism. But before that, timing the market. So what does it say? Do not cross this field unless you can do it in 9 seconds, because the bull can do in 10 seconds. Bull markets are very crazy. Okay, they are very fast, furious. So when I am saying this, people still believe that, and many of people have this conception that अगर बुल मार्केट है ना तो बहुत अच्छा है, और बियर मार्केट मतलब बहुत खराब है, मार्केट गिर गया तो बहुत खराब है. बट मेरे करियर में 30 years I am there in the market now, I have not seen a single instance wherein if stocks are purchased during deep correction or bear market, somebody has made loss. I have not seen it. Very rarely it happens. Okay, with minimum due diligence, if you do that, you don't make losses while buying in bear market. And it's not very intuitive, because bear market में रोज प्राइस नीचे गिरने वाली है, लेकिन अपने को रोज तो देखना नहीं है ना, अपने को तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है. And bull markets are all rosy. On the contrary, if you buy something during bull market, I have seen enough number of cases where people end up making losses. So bull markets are actually very risky. That's why it says, unless you can do it in 9 seconds, because bull can do it in 10. This is a very classic wealth creation formula. कौन सा फॉर्मूला है? परफेक्ट. आप तो सब सीए लोग हैं यार, आपको तो पता ही होगा ये कंपाउंडिंग का मैजिक है ना. ये अपन कोई 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सॉल्व किया, बट इसका इम्पैक्ट है ना मेरे को लाइफ में बहुत बाद में समझ में आया. क्या है वो? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 to the power t. हमेशा हम आर के पीछे भागते रहे, लेकिन वो छुपा रुस्तम तो क्या था? टाइम. वो यहाँ देखो आप, वो नीले वाला जो है ना इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका जो रिटर्न था वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपका इन्वेस्टमेंट बनते गया, और वो कंपाउंडिंग की तरह मैजिक करते गया. 20 year, 30 year, इफ यू हैव लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, डजंट मीन कि एक ही स्टॉक में मल्टीपल स्टॉक हो सकते हैं, चर्न हो सकता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर देयर इन द मार्केट यू मेक लॉट ऑफ मनी. So if your duration is very long term, horizon is long term, you can make lot of money. So A is equal to P into 1 + r/100 to the power t. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर 26% का एनुअलाइज रिटर्न है, 72 का फार्मूला तो खैर सबको ही पता होगा, शायद 26 का भी पता होगा. अगर 26% का एनुअलाइज रिटर्न है, इतना रिटर्न मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को मिलता भी है, लेकिन शायद अपने म्यूचुअल फंड वगैरह का 12, 14, 15% का रिटर्न है, पिछले 30 years का हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है वो. हम इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से बीट करते हैं. मैं 26% का एक रिटर्न लेके चल रहा हूँ, तो 10 साल में 10 गुना होता है पैसा. अगर 26% आपको 10 साल तक मिलता रहा, कभी 35 मिला, कभी 24 मिला, 26% ओवरऑल एवरेज मिलते रहा CAGR से 10 साल तक. 10 साल में वो कितना गुना होगा मालूम है? 10 गुना होता है. अगर 10 साल में 10 गुना हुआ तो 20 साल में कितना होगा? 20 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 100 गुना. एंड इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो 20 बैगर होगा.
I am with amongst the CAs, so I know that you will be very comfortable with compounding equation, but it is not very intuitive. It doesn't work very easily. ये कैसे होगा? तो 10 का 100, 100 का 1000 होता है. तो अगर 10 लाख है तो 100 करोड़ होते हैं 30 ईयर्स में. सो टाइम पीरियड फर्स्ट 10 ईयर्स में वो सिर्फ 1 CR होते हैं और नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो 99 CR उसको बनाते हैं. सेकेंड 10 ईयर्स में वो 10 CR होते हैं. थर्ड ईयर में 90 करोड़ आते हैं. तो 10 लाख 100 करोड़ होते हैं, लेकिन उसमें से 90 करोड़ लास्ट के 10 साल में आते हैं. ये कंपाउंडिंग है. कंपाउंडिंग इज अमेजिंग. आइंस्टीन सेड दैट कंपाउंडिंग इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. टाइम चाहिए, टाइम चाहिए. टाइम तो लगाना ही पड़ेगा. परफेक्ट, परफेक्ट. परफेक्ट, यस. सो दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. सो अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन अगर लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी लंबा ड्यूरेशन का ही नजरिया रखो. छोटा नजरिया रखा तो 90 करोड़ मिस होता है लास्ट के 10 ईयर्स का, समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 slides are very critical. Green versus red, color decoupling. Okay, so next slide when I am showing, you have to just help me out. You have to register your first thought which comes in your mind, nothing else, just the first thought. पहला thought क्या आ रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है इसको देखने के बाद, बस जस्ट उतना ही रजिस्टर करना. किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना. ठीक है? Just the first thought which comes in your mind, register it. Okay, I'm going to the next one. Just the first thought which comes in your mind. Now, when you saw red color, I think it was visible red only, right? When you saw first slide with red color, how many of you felt that it was a good color? It was something, very good feeling it has given. Okay, 1 person, 2, 3, 4, and on 5, and on the next slide, and everybody has to participate. And on the next slide, when the green came, how many of you felt it is a good color? It's vibrant, fantastic, almost everyone. And this is not something new. I have presented this in multiple forums, and it is not different. In different locations I have presented. Same answer I get, same answer. And that's why we all get the similar kind of returns. That's why I'm saying decoupling. So, when green is happening in parallel with the market, what does it mean? It means market is up, going up. And when red is shown, market is जो कल हुआ लास्ट के आधे घंटे में बत्ती गुल हो गई, है ना? तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? रेड हो गया पोर्टफोलियो, बुरा लगता है ना? तो रेड इज नॉट गिविंग गुड फीलिंग एंड ग्रीन इज गिविंग गुड फीलिंग. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. अब जब भी आप देखोगे टीवी पे तो जो टिकर बताएगा, अगर सिग्नल ऊपर जा रहा होगा स्टॉक तो ग्रीन बताएगा, रेड दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा, और ग्रीन दिखाएगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा, और मार्केट अगर नीचे जा रहा होगा तो रेड का भी डार्कर शेड लेके आ सकता हो तो वो दिखाएगा वो, बराबर ना? तो वो रेड मतलब गिरा हुआ, बुरा, और ग्रीन मतलब बहुत अच्छा. तो हमारा फीलिंग ग्रीन देख के बहुत अच्छा होता है. हमें जस्ट यही रिवर्स करना है. इसीलिए तो बाइंग द पेसिमिज्म एंड सेलिंग द ऑप्टिमिज्म, उसको लाने के लिए, क्योंकि बिहेवियर का बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए इसके लिए अपने को. ये आसान नहीं है और यही करना है. ये हम सीखेंगे इस प्रेजेंटेशन में. So bull is associated with green or red? Green, but here it is red. This is the portrait from my drawing room. So this is red, and bear is associated with green or red? Red. So every time you have a red in the market, they will show bear. बियर दिखाएंगे बिल्कुल हट्टा कट्टा बड़ा, बिल्कुल लड़ते हुए, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया. और नीचे अगर आप देखोगे ना शेडो में, तो बियर का बुल है और बुल का बियर है, क्योंकि जहां पे बुल है उसके बाद बियर आने वाला है, और जहां पे बियर है वहां बुल आने वाला है. मतलब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो हम खरीदेंगे या बेचेंगे? उस टाइम पे खरीदेंगे. वही बाइंग द पेसिमिज्म एंड सेलिंग द ऑप्टिमिज्म. हॉकी
अभी तो अपन थोड़ा इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे थे, अचानक हॉकी में कहाँ चले गए। तो बहुत अच्छा लर्निंग है, ये कंप्लीट गेम चेंज हो गया हॉकी में। हॉकी में यू नो ना, वी वर वर्ल्ड लीडर्स, मतलब चैंपियंस है। वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स हैं ऊपर, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 1998, 80 कंटिन्यूसली हमने गोल्ड मेडल जीते। जहाँ नहीं जीते वहाँ पे हमने सिल्वर जीता, तो नीचे सिल्वर भी है, या ब्रॉन्ज जीता। बट ऐसा कुछ हुआ कि गेम ही चेंज हो गया। ये हुआ, ये क्या है? उससे पहले गेम किस पे होता था? ग्रास पे होता था, और उस पर अपना स्किल लगता था। अभी स्किल की जगह वो गेम ही एकदम फास्ट हो गया, और हमारे यहाँ एस्ट्रोटर्फ थी नहीं, तो हमको फिर गोल्ड मिलना बंद हो गए। बाद में गोल्ड ही नहीं मिले हमें, 80 के बाद देख लो गोल्ड ही नहीं है, खत्म, फिनिश, ओवर, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ आ गया। 76 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से हम पूरा डिटोरिएट हो गया। ये 76 के ओलंपिक के बाद ये नॉट वॉन। 76 में तो खाली हाथ ही आए, सवाल ही नहीं था खाली हाथ आने का। लेकिन ये गेम चेंज हो गया, ये गेम कहीं और भी चेंज हुआ है। अल्गोस, एआईएस, ये गेम चेंज कर रहे हैं। अभी गेम सेम नहीं रहा। सो अल्गोस आर डोमिनेटिंग द एंटायर थिंग, एंड व्हाट स्ट्रेटजी वर्क yesterday will not work today. Big players will have sophisticated system using algos, AI, proprietary strategies, highly skilled teams. They will have PhDs in their team, which are difficult to evaluate for individuals. उनके तो सिस्टम भी बिल्कुल जहाँ पे ट्रेड हो रहा होगा उसके पास में लगा देंगे, और हम लग रहा है कि अरे हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, अभी हम F&O से यहाँ जीतने वाले हैं। कहाँ से जीतेंगे? उसको तो आपका ट्रेड ही पता लग जाएगा माइक्रो सेकंड में। वो हुआ था ना। Traders will continue to have tough time in making money. The data shared by regulator shows that 90% of F&O traders lost money. Of course, there are 10% smart people. I am sure that some of this must be here also. But majority of them lose money. But trading is a very difficult game otherwise. So what remains with us, with investors? Human behavior. Extremely important. Extremely important. It can't be evaluated. और ये एग्जाम्पल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, 7 Jan 2021, बिफोर ही एक्वायर्ड ट्विटर, एलॉन मस्क, ही इज द नाउ ओनर ऑफ X, which was earlier Twitter, and of course there are multiple other companies, Tesla and many other. He tweeted just 2 words, use Signal. Early in his morning, it was evening in our time, early in his morning, he said use Signal. अभी क्या होता है, अल्गोस काम करना शुरू करते हैं पीछे, और बिकॉज ही इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम, तो जैसे उसने ट्वीट किया वो थाउजेंड्स में रीट्वीट हो गए, लाइक्स हो गए, और लैक्स ऑफ व्यूज़ आए, तो अल्गो ने कैच किया उसको, यूज सिग्नल। तो सिग्नल है क्या? तो उनको एक स्टॉक मिल गया, सिग्नल एनालिटिका, सिग्नल एडवांस, INC। ये स्टॉक बेचारा कुछ नहीं कर रहा था। ये स्टॉक पेनी स्टॉक था वहाँ का, $0.6, 60 पेंस पे था, ओके, $1 का भी नहीं था ये, और ये 2 दिन में 16 बैगर हुआ है, 2 दिन में, ओके। क्यों हुआ? क्योंकि अल्गो ने पकड़ लिया, उसको लगा कुछ तो सिग्नल है, उसने ढूंढा जाके, तो उसको सिग्नल एडवांस मिला वहाँ पे, और उसने ट्रेड शुरू कर दिया। और जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो लास्ट में अपने जो लोग बचे थे जो कि स्ट्रेटजी लगाते हैं अपने सिस्टम की, उनका अरे यार ये बढ़ रहा है, इसको लेते हैं, क्योंकि वो कहीं तो ब्रेकआउट मिला, वो लिया, उन्होंने भी लेना शुरू किया। फिर तीसरे दिन समझ में आया अरे ये तो अपने ये कंपनी है ही नहीं कुछ, ये बंडल है। वो प्रमोटर से पूछा तो उसको कुछ पता नहीं क्यों बढ़ गया ये, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन 16 बैगर हो गया 2 दिन में, ओके। So Elon Musk tweets, use Signal. People search Signal in the market, find Signal Advance INC, $0.6 per share. It goes up 16x in 2 days to make a top at $10. Actually, it went to up to $10. And who cares? What does Signal Advance do? यहाँ पे human behavior बहुत बहुत important है. Most of the people, those who would have come, would have booked losses. वो आप चार्ट में देखोगे ना, वो ज़्यादातर लोग टॉप पे आएंगे। फोमो वर्सेस फोलो। अपन तो अहमदाबादी, अपन तो मीठा खाने के शौकीन लोग हैं, बराबर ना, है ना, कुछ गलत नहीं है उसमें। सबसे पहले मीठा ही आता है जुबान पे, स्वीट, ओके, द फर्स्ट पार्ट, एंड देन सॉल्ट, देन सॉर, एंड लास्ट इज बिटर। बट उससे भी पहले आता है
FOMO, fear of missing out. What is fear of missing out? Anyone could help me? मैं रह गया, मेरा छूट गया, इसने ज़्यादा कमा लिया मेरे पड़ोसी ने है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैंने किसी शेयर में पैसा बनाया लेकिन उसने थोड़ा ज़्यादा बना लिया ना, तो तकलीफ है मुझे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई शेयर बढ़ गया, कोई सेक्टर बढ़ गया, वो डिफेंस बहुत चल गया यार, मेरे पास शेयर ही नहीं है यार, वो बढ़ते जा रहा है और इतना, और वो ट्रांसफार्मर का कंपनी यार वो 60, 70, 80 बैगर हो गया कोई कंपनी, अपने पास तो है ही नहीं। और वो रिपोर्ट आया अभी जिसमें बोल रहा है कि अगले 10 साल का बहुत रिक्वायरमेंट है इंडिया में। तो वो पीपी वाटर बॉल्स वाला कुछ था ना, एक भट्टी साहब का, किसी ने देखा वो वीडियो तो, है ना, तो ऐसा बड़ा बड़ा स्टोरी आता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो फर्स्ट यू टेस्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉलोड बाय फियर ऑफ लूजिंग मनी, द लास्ट वन। एंड इन बोथ दिस बिहेवियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट कब होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है एट द पीक ऑफ द मार्केट, और फियर ऑफ लूजिंग आउट कब होता है? एट द बॉटम ऑफ द मार्केट, एंड एट बोथ द साइड यू लूज मनी। तो जब आप ऊपर जाके खरीदने की कोशिश करते हो तब भी आपके लॉसेस आएंगे, और जब आप नीचे जाके बेचने की कोशिश करते हो तो भी लॉस आएंगे। तो वो बिहेवियर कंट्रोल हैज टू बी रिवर्स। सो इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर, एंड आई कैन बेट अल्गो आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये चीज चेंज नहीं होगी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। वो तो और बूम करके आता है। तो पहले जो साइकिल मार्केट की 2 साल 3 साल 4 साल होती थी, आजकल वो शॉर्ट हो गई है। आपको 1-1 साल में करेक्शंस मिलते हैं, बढ़िया करेक्शंस मिलते हैं। तो वो और अपॉर्चुनिटी देता है आपको, अगर आप जस्ट रिवर्स कर दो तो इसको, बिहेवियर को। इफ यू एंड अप टेस्टिंग टू मच ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू एंड अप टेस्टिंग ऑल योर लाइफ द फियर ऑफ losing money. So what is pessimism? Now let's come to the point. So dictionary defines that a tendency to see the worst aspect of things or believe that worst will happen. This is pessimism. और मार्केट के पैरेलल्स में अगर हम देखें तो एंड ऑफ मार्केट व्हेन करेक्शंस हैपन, और भैया खत्म ही होने वाली जिंदगी अभी हाल। एंड ऑफ मार्केट्स व्हेन करेक्शंस हैपन, और करेक्शंस बहुत सीवियर, सडन, बिना देखे बिना सोचे समझे आते हैं। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना सब अच्छा होने वाला है, तब करेक्शंस आते हैं। जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना करेक्शंस आने वाले हैं, तो नहीं आते हैं। फिर सडनली एकदम से सबको मजा आने लगता है मार्केट में, और वो करेक्शन आता है। तो एंड ऑफ मार्केट्स व्हेन करेक्शंस हैपन, और हर बार रीजन नए होते हैं करेक्शंस के। हर बार नियम जो बिग करेक्शंस आते हैं ना, उनके जो रीजंस होंगे वो हर बार नए होंगे, पुराना वाला रिपीट ही नहीं होता है। 92, 93 में हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ, वैसा आया ही नहीं। फिर वो 2000 में जो आईटी का बूम आया, वैसा आया ही नहीं। 2007-8 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इसका जो करेक्शन आया वो आया ही नहीं। अब उस ग्लोबल स्लोडाउन जो हुआ था फाइनेंशियल मार्केट का 2007-8 में, वो आया ही नहीं। फिर 2020 में कोरोना का, भगवान न करे वो आए, लेकिन ऐसा एकदम नया नियम था, एकदम नया रीजन था। एंड ऑफ सेक्टर्स व्हेन डार्लिंग सेक्टर कोलैप्स, सो आईटी सेक्टर कोलैप्स व्हिच वाज डार्लिंग ऑफ द मार्केट। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन अहमदाबाद 99-2000, एंड आई नो क्या फ्रेंजीनेस थी वो मार्केट में। एक एग्जांपल है, हम बात करेंगे उसकी। एंड ऑफ कंपनी व्हेन इवेंट हैपेंस, मतलब ये तो मरने वाली है, अभी कंपनी खत्म, सब खत्म, बंद करो दुकान, अपन घर चलते हैं, है ना यार, एफडी अच्छी थी, ये कहाँ फंस गए अपन मार्केट में, ये सब लगने लगता है। सो दिस इज व्हाट इज पेसिमिज्म। सो वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इवैल्यूएट ईच केस इंडिपेंडेंटली एंड रैशनली, एंड विल सी सम एग्जांपल्स ओवर देयर। Now, pessimism in the market, how does it look like and how to navigate? We talked about in the previous slide in point that जब ये होता है तो ऐसा लगता है पूरा मार्केट खत्म, सब खत्म। 2020 का बहुत रिसेंट एग्जांपल है, हम सभी लोग उस टाइम मार्केट में होंगे। मैं 92 का एग्जांपल दूँ तो शायद सब लोगों को पता समझेगा नहीं, रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2020 में तो ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट बी देयर इन द मार्केट। ऐसा न्यूज़ आता है, ये एकदम से पीक था जब मार्केट का बॉटम बना है। 23 मार्च 2022 was the bottom of the market. क्या न्यूज़ आती है बिजनेस स्टैंडर्ड? ये नथिंग रॉन्ग इन एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट्स। मीडिया के नाम लेने से कुछ गलत नहीं है, सभी लोग यही रिपोर्ट करेंगे क्योंकि सभी को यही दिख रहा है, तो सब लोग वही बात करेंगे। क्या बोल रहा था? बिगेस्ट क्रैश एवर मेक्स इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड दैट डे। मनी कंट्रोल हम सभी लोग फॉलो करते हैं। वो क्या बोल रहा है? The Sensex plunged by 4,000 points, while the Nifty was down by more than 1,000 points. Calls grow for BSE, NSE to be shut down. बंद कर दो दुकान, सबको बंद कर दो, उससे हमारा नुकसान रुक जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है,
ऊपर जा रहा है तो कोई नहीं बोलता कि बंद करो सबको अच्छा लगता है वो ग्रीन है ना, ये रेड दिखा, अभी रेड कलर में था इसका एक्चुअल कलर भी आप देखोगे ना तो रेड में ही दिया उसने, तो हमें वो रेड दिखता है तो और उसको बंद करो अभी हाल। Then Indian Express, and it's not only one media, everybody was talking the same thing. 23rd March 2022, stock markets post worst losses in history. Sensex crashes almost 4,000 points and amid कोरोना वायरस लॉकडाउन। कोरोना वायरस लगा था और उसके कुछ दिन बाद की बात थी ये, तब मार्केट का बॉटम बना था। द वीक अगेन द सेम थिंग, व्हाट आर स्टॉक मार्केट सर्किट ब्रेकर्स, ऑल यू नीड टू नो। तो अभी मार्केट तो बंद करना ही है, सर्किट ब्रेकर क्या है वो भी बताओ। तो फियर मॉन्गरिंग इतना होगा ना, चारों तरफ से एक ही टाइप की न्यूज़, कहीं पे भी जाओ, दोस्त से बात करो तो वो भी यही बोलेगा, टीवी देखो तो वो भी यही है, सोशल मीडिया पे जाओ तो वो भी यही है, व्हाट्सएप में तो मैसेज आना ही बंद हो जाएंगे, वो जो ग्रुप है ना वो सब शांत हो जाते हैं, एकदम सब बंद हो जाते, सो जाते हैं। तो सर्किट ब्रेकर्स क्या है वो समझाते हैं कि मार्केट के सर्किट ब्रेकर, अपने को कुछ पता नहीं होगा ना तो भी बताएंगे वो लोग कि 10 बजे का इतना है, 11 बजे हुआ तो इतना है, अगर 2 बजे हुआ तो इतना % गिरेगा तो सर्किट ब्रेकर लगेगा तो मार्केट बंद हो जाएगा, ये सब ज्ञान देना शुरू होते हैं। तो अपना डर और एनहांस होते जाता है। और वो सब अगर सफिशिएंट नहीं है तो नॉन मार्केट न्यूज़ ऐसी आती है। अभी मैं पूना से आया हूँ, ये पूना का ही न्यूज़ है उस दिन का, 23rd मार्च। क्या हुआ, एयर एशिया पायलट जंप्स आउट ऑफ कॉकपिट। आज हम ये पढ़ेंगे ना तो हंसेंगे, लेकिन आप सोचो वो जब फियर था 23rd मार्च 2022, कोरोना वायरस लगा ही है अभी हाल, सबको डर है बहुत बुरी तरह से, और वहां पे ये न्यूज़ आती है, एयर इंडिया पायलट जंप्स आउट ऑफ कॉकपिट आफ्टर पैसेंजर स्नीजेस इन पुणे दिल्ली फ्लाइट। किसी ने छींक दिया तो वो पायलट वहां से कूद के भाग गया। अब ये न्यूज़ आप पढ़ोगे, उसका वीडियो भी था, आप वीडियो देखोगे ना तो वो भी दिखेगा आपको, आप वो वीडियो देखोगे क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फ्लैश होगा, आपके पास आएगा ही वो, तो डर जो बचा कुचा था ना वो और बिल्ट होगा कि यार अभी तो सब बंद होने वाला है, सब दुकान बंद हो रही है, ये भी भाग गया, अपन भी भागते हैं यहाँ से मार्केट से। तो कहाँ पे बेच रहे होंगे अपन, बॉटम। और जो कुछ बचे किसी की असर होती है तो वो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो भी फिर उसी डायरेक्शन में बात करते हैं, तो हमको लगता है भाई इकोनॉमिस्ट है, और नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट हिम, आई एम नॉट यू नो पिन पॉइंटिंग एनी इंडिविजुअल, बट दिस वाज अक्रॉस एक्चुअली, इट वाज जस्ट न्यूज आइटम दैट आई कुड फाइंड एंड आई पोस्टेड ओवर हियर। व्हाट इट सेज, इंडिया इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट्स राइट नाउ। उन्होंने कंक्लूड कर दिया इमर्जिंग मार्केट में इंडिया तो है ही नहीं। पिछले 4 साल में क्या हुआ, कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ, कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, किसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया, अरे इमर्जिंग छोड़ो, वर्ल्ड में किसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ खो दी होती अगर हम ये सुनेंगे तो, सबसे बड़ी। हाँ, आई थिंक वॉट एवर आई सीन इन लास्ट 30 years, द बिगेस्ट वेल्थ वॉज क्रिएटेड इन लास्ट 4 years। और अगर ट्विटर या फेसबुक ये सब के फिन क्या बोलते हैं उसको, फिनफ्लुएंसर्स है ना, बराबर ना, फिनफ्लुएंसर्स, तो फिनट्वीट और फिनफ्लुएंसर वो भी ऐसी बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं, एंड दिस वाज अ वेरी पॉपुलर अकाउंट, आई नॉट नेम्ड हिम, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट बिकॉज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सभी लोग ऐसे ही उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। My suggestion on short selling was keeping in mind the interest of millions of retail investors who have come to market in last few years. Extraordinary situations sometimes call for extreme steps. अरे भैया जब टॉप बना रहा था मार्केट 2019 में, आपने बोला था क्या बंद करो मार्केट? अगर आपको छोटे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखना है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखना है तो दोनों साइड देखो ना। जब बॉटम बन रहा है, जब मार्केट डाउन जा रहा है तो आप मार्केट बंद करने की बात कर रहे हो, ऊपर जा रहा है तो लॉस नहीं हो सकता क्या? ऊपर जाने पे ज्यादा लॉस होता है, नीचे पे नहीं होता है। मैंने अभी शुरू में कहा, व्हेन यू बाय इन डीप करेक्शंस, very rarely, I have not seen at least, very rarely, that's why I'll put very rarely, you would end up making losses if you've done minimum due diligence. But there are enough number of chances, very high chances, you will end up making losses when there is a
बुल मार्केट एंड मैडनेस इन द मार्केट, तब कोई बात नहीं करता है. What is optimism? The feeling that the future will be bright or successful or a belief that something good will happen. भैया यही है, ले लो, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ना अगले 10 साल के लिए है. वो मालूम है तुमको, वो यूएस में जो चल रहा है अभी हाल, क्या चल रहा है? अपने मोबाइल का सारा डेटा है ना, वो डेटा सेंटर में डालना पड़ता है, उधर उसको बहुत ठंडक लगती है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी. ट्रांसफार्मर भी नए वाले हैं, इतने साल का इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है और कोई बनाने वाला ही नहीं है. तो वो स्टॉक तो 80 गुना हो गया ऑलरेडी. नहीं, यहां से और 100 गुना हो सकता है. ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस आते हैं, अगले 30 साल के प्रोजेक्शंस हैं. ऑप्टिमिज्म, बिग स्टोरीज ऑल अराउंड, सेक्टर्स विद एक्सट्रीम ब्राइट फ्यूचर. ये ईयर 2000 में एग्जैक्टली सेम था आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए. दुनिया बदली सॉफ्टवेयर ने, लेकिन किस वैल्यूएशंस पे थे भाई? वो प्राइस जो इन्फोसिस ने उस टाइम पे देखी थी, सेम प्राइस आने के लिए उसको सालों लग गए. विप्रो तो 2020 में आई वो प्राइस जो 2000 में था. इसका मतलब ये नहीं कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ नहीं किया. दे हैड डन फिनोमिनली वेल एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग देम आइदर वे, बाय और सेल, होल्ड ऑन, नथिंग. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केस व्हिच हैज हैपेंड इन 2000, द मैडनेस व्हिच वाज देयर, द ग्रोथ वाज देयर. जो 20 साल 30 साल की ग्रोथ बात कर रहे थे हम, है क्या वैल्यूएशन पे थे? वो एकदम सीवियर बुल मार्केट है, टॉप क्लास. आप उसमें जाके घुसोगे ना तो हाथ जलने के चांसेस ज्यादा होंगे. और वो तो चलो विप्रो और इन्फोसिस तो सर्वाइव कर गए, 80-90% कंपनीज तो सर्वाइव ही नहीं की जिन्होंने नाम चेंज कर लिए थे. अहमदाबाद की भी थी. सेम चीज हैज हैपेंड. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो. सेम थिंग. और जब वो डिफेंस का सब स्टोरी चल रहा होता है तो 20 साल 25 साल 30 साल का प्रोजेक्शन आता है, कैपेसिटी नहीं है, वो बात करेंगे, सब बात करेंगे. और उसी वक्त पे एक म्यूचुअल फंड अपना एनपीओ लेके आएगा बिल्कुल टॉप पे, तो लोग सब घुसेंगे उसको, उसी को देखेंगे चारों तरफ. ये 10 रुपए में मिल रहा है इसका एनएफओ, क्यों ना लगा ले. अरे भैया वो 10 रुपए भी तो महंगा पड़ेगा ना तेरे को. Now, how does optimism in the market look like and how to navigate? So this is the case study from year 2000. Okay, it was during this period I was here in Ahmedabad. Look at Feb to March. कितना टाइम हुआ? Feb to March? Hardly any time, है ना? और within this year of year 2000, this stock was 10 beggar. Huh? Within a span of 1 year, 6 months actually, within a span of 6 months, not only this, ये तो बहुत छोटा स्टॉक है, इन्फोसिस 10 बेगर था यार. क्या मतलब पागलपन था उस टाइम पे वैल्यूएशंस का. और वही होता है जब बुल मार्केट का मैडनेस चल रहा होता है. और वॉल्यूम देखो आप इसका, 13 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था, वो हाईएस्ट वॉल्यूम अमॉन्ग्स द हाईएस्ट. 24 lakhs, 23 lakhs, 13 lakhs, ये टॉप बना इसका 2272 पे, 2000 प्लस. इसका प्राइस मालूम है आज कितना है? क्या प्राइस होगा? कुछ एक गेस, अपने को तो नाम भी नहीं पता है ना, गेस करने में क्या प्रॉब्लम है? ये कभी आएगा नहीं प्राइस. और हम क्या है, वो लेने के बाद थोड़ा गिर गया तो सोचते नहीं ये वापस आ जाएगा, पिछली बार भी आ गया था, एक हफ्ते गिरते हैं, बोलते नहीं इसको ट्रेडिंग के लिए लिया था, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है. फिर वो इतना लॉन्ग टर्म हो जाता है कि अभी तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं आते, पहले तो शेयर सर्टिफिकेट आते हैं घर में, उसका फोटो लगाते हैं अपन, अभी डीमेट में पड़ा रहेगा फिर वो. So another behavioral aspect I am touching upon with this slide. Okay, which stock would you buy for a period of 5 years? We have only A and B, two names. One is at 27 rupees, second is at 9,785. Those who want to buy A, just raise your hands and be very honest. 27 रुपए पे है स्टॉक, खोने को 27 रुपए है उधर, है ना 27. अब यार तुम यार हाथ खड़े नहीं कर रहे हो यार, देखो यार खाने को मेरे को मालूम है, भूख लग रही है सबको. हाँ काफी लोग हैं ना. अभी बी वाले कौन है? तो एक ना एक तो स्टॉक लेना है, मार्केट में है तो अपन यही दो ही है. ऐसा नहीं चलेगा कि मैं तो ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं, मैं तो होल्ड करूंगा, मार्केट बहुत ऊपर है. अभी नितिन ने बोला ना, बाइंग द पेसिमिज्म, ये तो बहुत ऑप्टिमिज्म है, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग. नहीं, ए या बी कुछ खरीदना है. अभी अपन तो गुजराती लोग, अपन तो खरीदते ही है ना.
है ना? चलो बोलो अभी ए कौन खरीदेगा, बोलो, बहुत सारे है ना, वेरी नाइस, सब लोग को हाथ पार्टिसिपेट करना है। बी कौन खरीदेगा, वेरी गुड, अभी सब समझदार हो गए, सबको स्टोरी पता है इधर। हाँ, नो देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू हैव ओनली ए और बी, पैसा लगाने का है अभी, ए और बी, अभी फंडामेंटल टेक्निकल कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस है, बस इतना ही पता है। अभी मैं बताता हूँ इसका आगे का स्टोरी। ओके, ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन दिस स्टॉक्स वर ट्रेडिंग, आई वाज इन क्रिसिल, एंड नथिंग अगेंस्ट माय कलीग, वेरी स्मार्ट गाय, IITian, father was chartered accountant, nothing against chartered accountant of course. So it was in 2012 August, yeah, so it was at 27 rupees in Feb and 7 rupees in August. He said 7 रुपये आ गया सर, क्या गिरेगा ये और? He was new to the market, of course. We all learn, I also learned, lot of money I lost, then I learned. पहले पैसा था, बाद में एक्सपीरियंस मेरे पास हुआ। पैसा मेरे पास नहीं रहा, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस अभी वो ले रहा था। तो बोला 7 रुपये में क्या, 7 रुपये तो लूज होना है सर, ये तो 27 रुपये जाके आया साल में, और इसका आपको प्रीवियस हाई नहीं पता है कितना है। तो ओके, आई हैव द नेविगेटर ऑल्सो। सो ही सेड इसका एवर हाई 290 है, 10 बेगर का चांस है, उससे ऊपर तो जाने वाला होगा, ये 2007 का है, अभी तो जीरो हो गया। लेकिन तो ये पेनी स्टॉक मेंटेलिटी कि हमें छोटा स्टॉक चाहिए। नितिन जी कुछ स्टॉक, ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो 100 के नीचे हो, 50 के नीचे तो बहुत बढ़िया, और 10 के नीचे हो तो बेस्ट, क्योंकि 10 रुपये खोने को है। अरे भैया 100% कैपिटल लॉस होगा तेरा, ये 7 रुपये का पूरा 7 रुपये लॉस हुआ है ना। ये स्टॉक जो था ना सर्विस इंडस्ट्री का था, टायर्स एंड फ्यूल इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, एनी गेसेस कौन सा हो सकता है स्टॉक? अभी तो ट्रेड भी नहीं होता है, इसका प्रमोटर भाग गया, लंदन में बैठा है। निर्मला जी बोलते हैं कि वो पैसा दे दिया है, काफ़ी कुछ बैंक से वसूल लिया है। किंगफिशर एयरलाइन है ना, ये किंगफिशर एयरलाइन है। ये दूसरा स्टॉक है, ये उसी टाइम का है, 9785 था फैब में, 11,000 था 2012 में। बोले 7 रुपये का बढ़िया है, 11,000 रुपये डालने पड़ेंगे एक शेयर के लिए। इसका एवर हाई है फैब में 1,51,000 और नाउ 1,27,000, थोड़ा करेक्शन है। तो इसलिए हमेशा प्राइस देख के नहीं, वैल्यू देख के करना है अपने को। थोड़ा सा अगर हम उसका एनालिसिस करें ना तो समझ में आ जाएगा हमें। Now going back to the topic pessimism and optimism, between optimism which has been painted now in red, optimism मतलब बुल मार्केट मतलब ग्रीन नहीं, रेड रिस्क है उधर, पैनिक बाइंग। और पेसिमिज्म में क्या होता है, पैनिक सेलिंग करते हैं लोग, अपने को पैनिक बाइंग करना है वहाँ पे, जस्ट रिवर्स करना है। एक्सट्रीम थिंकिंग ड्यूरिंग बायंसी एंड ड्यूरिंग कोलैप्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस फियर ऑफ क्रैश्ड आउट। तो बहुत ही अच्छी बात बोली है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके जो बुक है उसमें, जिसको अपडेट किया है, जो ओरिजिनली जो किसने लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम ने, है ना। और बेंजामिन ग्राहम की एक और बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, आपको मालूम है, आई एम जस्ट डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक जस्ट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बुक। So security analysis was the book which became the curriculum for CFA program. It was started with that book. So उनका एक पोर्ट्रेट जो है ना वो CFA सोसाइटी के ऑफिस में लगा हुआ है यूएस में, CFA इंस्टीट्यूट के ऑफिस में यूएस में, वो वॉरेन बफेट ने दिया है। तो कमिंग बैक टू दिस, the market is a pendulum that forever swings between unsustainable optimism which makes stocks too expensive and unjustified pessimism which makes stock too cheap. तो कितना आसान है, वॉरेन बफेट बोलता है ना, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, मतलब जब सब खरीद रहे हैं तो आप बेच दो, जब सब बेच रहे हैं तो आप खरीद लो, वही तो पॉइंट है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट एंड बाय फ्रॉम पेसिमिस्ट, बट इजियर सेड देन डन। लगता बहुत आसान है भाई साहब, ये जर्नी बहुत टफ है।
बिहेवियर का तो बहुत कंट्रोल चाहिए. Buying the pessimism means buying when there is a carnage. Apply mind and not emotions. Think rationally, then emotionally. वो इमोशंस जहाँ जाते हैं ना वहाँ इसलिए बहुत मुश्किल है. वो IQ और EQ में जो फ़र्क है ना वही है. IQ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होंगे लेकिन EQ जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है. आप स्कूल की, कॉलेज की, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से IQ होगा लेकिन EQ एक उसे आदमी के पास भी हो सकता है जो शायद ये सब जगह नहीं गया है और बहुत बढ़िया कंट्रोल हो सकता है उसका. एंड ही कैन मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस इन मार्केट्स. ही विल कंटिन्यू टू डू दैट. Have a view to hold the business for next few years without significant returns. Keep expectations to minimum. जब ये खरीद रहे हो ना पेसिमिज्म में अपन तो एक्सपेक्टेशंस एकदम जीरो ही रखना चाहिए. मान के चलो कि अगली खरीदने के बाद अपना नीचे आएगा और आता ही है नीचे, कोई बात नहीं ना. अपने को मालूम है कि इंडस्ट्री मर रही है और हम फ्रेमवर्क देखेंगे कि किन सिनेरियोज में वो बिल्टअप होता है, कैसे बिल्टअप होता है. Even if expect the underperformance, even if we can't control our emotions, we can control the attentions we give to our emotions. तो भैया क्या है वो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया जो वैसे ही बंद हो जाते हैं पेसिमिज्म के समय, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो. So I am not there in any of such heavily discussed WhatsApp groups where stock discussions are there. I am not there. Social media also I tried to keep it minimum. Media, e-media, print media बहुत कोशिश करना चाहिए कि दूर रहें. इनका तो वैसे भी अभी प्रभाव कम हो गया है. डिस्ट्रैक्टेड बाय इमोशंस. सो लिस्ट 3 एक्टिविटीज दैट यू कैन बिजी योर सेल्फ इन. फॉर मी इट्स रैंडम ग्रेटिट्यूड. सो आई गिव रैंडम ग्रेटिट्यूड. थैंक बोलने का, धन्यवाद बोलने का सबको. ये बहुत कूल डाउन करता है. तो जब 23 मार्च 2020 क्या हुआ था 23 मार्च 2020 को मार्केट का बॉटम बना था. उस दिन तो मतलब सब कुछ लाल हो गया था, है ना, सब कुछ लाल था. तो उस टाइम पे अपने को रैंडम ग्रेटिट्यूड देने का. थैंक यू मार्केट, थैंक यू शेयर्स, थैंक यू माय बैंक फंड्स, थैंक यू माय वाइफ, थैंक यू माय किड्स, थैंक यू एवरीवन. Random gratitude means random. Okay, so I just named something, but random can be anything. You can start with your pen, your copy, your laptop, softwares. So it cools down. It takes your attentions away from that anxiety which is getting built up because market is down and you are severely affected by that. कितना देर है हमारे पास? I'll see. है ना? Meditation, of course, it helps. Vipassana is something that I practice very regularly. It helps me. Reading books. So you're again, you're keeping your attentions away. This is a meme stock. So corrections, types, and impact. It is easier to guess. There's no, it's ITC. So, and this is not a recommendation. I'm still holding it. So it was having a 5 years of stagnation. Okay, 2017 to 2022 it became meme stock. सब लोग मजाक उड़ाते थे, सब बढ़ जाएगा, ये कब बढ़ेगा वगैरह वगैरह. बहुत सारे मीम आते थे इस पे अलग अलग. बट लोगों ने ये नहीं देखा कि इसके पहले क्या हुआ था. लेट्स सी व्हाट हैपेंड प्रायर टू दिस 5 years. 10 year का उसमें रैली था. फ्रॉम 2007 to 2017 6.6 बैगर था वो, विच इज a 21% प्लस डिविडेंड. डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है. ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है यार. इट्स नॉट बैड बिकॉज इट्स अ लार्ज स्टॉक. उसके पहले फिर 5 साल देखो क्या हुआ था, वापस स्टैग्नेशन था वो. तो ये तो पार्ट है यार साइकिल का. उसके पहले 5 साल देखो तो वो 5 years में 4x हुआ था, प्लस डिविडेंड दिया था उसने. सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो अगर 5 साल के लिए वो स्टेगनेंट है तो लुक एट रैशनली कि हमको अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, इसमें पेसिमिज्म बिल्ट हो रहा है क्या, तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है फिर उसमें. प्राइस करेक्शन परमानेंटली डेड. सो दिस आर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स. सो ऑप्टिमिज्म जो बिल्ट हुआ 2006, 7, 8 में 3 सेक्टर थे प्राइमरीली, रियल एस्टेट, इंफ्रा और टेलीकॉम. टेलीकॉम में तो सबसे बड़ा स्टॉक आया था उधर आईपीओ लेके. उसके बाद ही पूरा मार्केट क्रैश हुआ ना. तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने और दे वर डार्लिंग ऑफ द मार्केट दैट टाइम. मतलब आप किसी को उस टाइम पे अगर आज आपके पास लग्जरी नहीं कि यू आर इन 2024, यू गो बैक इन हिस्ट्री इन 2007, है ना.
वहाँ जाके बैठो और आपको बोलो कि आपको 2007 से 2024 का कोई हिस्ट्री पता नहीं है, सब ब्लैंक है, यू आर इन 2007। और अगर आप बोलो कि ये पुंजुलॉयड है ना 95% लूज करने वाला है, 98% लूज करने वाला है, या जेपी एसोसिएट 98% लूज करने, लोग हंसते आप पे। उधर रोज F&O के कॉल होते थे इस पर, शाम को 3:15 बजे, कौन सा वो BTPT क्या बोलते हैं उसको, हाँ बस, तो वो कॉल में आते थे उसके नाम, फ्रिक्वेंटली ये सब मिलते थे। Mistakes always happen at the top. Okay, so 1 lakh became maybe 2000-5000 कुछ तो मिलेगा इधर कोड़ी, है ना। वो बोलते हैं ना 1 लाख लगाए होते, बाइक नहीं खरीदी होती तो 5 करोड़ होते थे, है ना। अच्छा है बाइक खरीद ली, बाइक तो है ना। It is only when the tide goes out you know who is swimming naked, very rightly said. But उसी में अपॉर्चुनिटी बिल्ड हुई जब वो क्रैश हुआ 2008 में, 2009 में, 2010 में। कुछ तो इंफ्रा कंपनी होगी जो अच्छा करेगी, और इंफ्रा तो लगने वाला है ना, ऐसा तो नहीं इंफ्रा बंद हो जाएगा इंडिया में, है ना। ये कंपनी, एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, इसका IPO आया था 2008 में 140 रुपये पे, अच्छा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बिल्कुल पीक के थोड़ा पहले आया था ये, और बहुत बढ़िया बैलेंस शीट थी। ये कंपनी का पहला प्राइस करेक्शन जब लिस्ट हुआ, उसके बाद पूरा सेक्टर डूब गया, तो ये 50% धड़ हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर वापस 50% एक बार और क्रैश हो गया, तो 2 बार तो 50% क्रैश ऐसे ही आ गया इस स्टॉक में। और वहाँ से 16 मई 2014 का इम्पोर्टेंस पता है? सी, इन्होंने ये नहीं बोला मेरा बर्थडे भी उसी दिन होता है। So actually that day the result came of Lok Sabha, and we used to conduct that during those days free sessions in Pune, ऐसा सब लोग का जमात लेके अच्छा सेशंस करते थे। वो रिजल्ट आया था, उसके बाद ही हमने किया था ये सेशन, तो इसलिए that's why I remember, because we discussed this stock. 7.11 year, less than 8 years, it became 23x from that 2014। बट मजा देखो अभी, हाँ ये क्रैश हुआ था ना 2 बार, 8.9 years, थोड़ा और पहले गए वो क्रैश से 56x। चलो थोड़ा और पहले जाते हैं, 13.6 year, वो क्रैश से 133x। तो जहां पे 95-98% वेल्थ लॉस हो, वहां पे कोई स्टॉक था जिसने मोर देन 100 बैगर बना के दिया है वो पीरियड में, और वो भी 50% क्रैश होने के बाद। ओके, सो शुड आई कंसिडर बाइंग हियर और समथिंग लाइक हियर? 100% वैल्यूएशन, क्वालिटी, गवर्नेंस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब क्रिटिकल। बट जब टॉप पे आता है ना तो सब भूल जाते हैं। Everybody knows peak after it's gone, but during the peak you participate in that frenziness, and that's why you'll never be able to forget कि ये peak पे मैं गया था अंदर। Exactly, nobody knows, but when the frenziness is going on, at least you avoid going into it। भाई साहब अगर पार्टी चल रही है ना, पार्टी चल रही है जोरदार, और अहमदाबाद लोग तो पार्टी में बहुत, मतलब मेरे को मालूम है, माहिर है, एकदम बढ़िया पार्टी करते हैं, आप तो फेमिलियर होंगे। पार्टी चल रही है और पीक का टाइम है पार्टी का, 12 बज गए, अभी हाल पार्टी बंद होने वाली है, तो पार्टी के बीच में जाके खड़ा होना है या गेट पे खड़ा होना है? सी, अहमदाबादी है, पता ही होगा। तो अभी पीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, पार्टी का 2 बजे खत्म होगी, 12 बजे पीक तो चल रहा है, लेकिन ना सब लोग डांस फ्लोर पे हैं और अभी बिल तो भरना है, तो भाई साहब गेट पे खड़े रहो, ज़्यादा अच्छा है। No, let's not talk individual stocks, है ना, I would avoid, sorry, हाँ। And these are all case studies again from the past. Only from the past we can learn. Future तो हम सीखने ही वाले हैं बाद में। So IPCA का एक case study है, and I'll cover it quickly. I'll take 10 more minutes from him. नहीं, let's not, because I am still holding it since 2011, so not right on my part to name the stock, but it's there, okay? It was in our recommendation also. Buying the pessimism, selling the optimism, IPCA case study. Again, I am not holding it, but at one point of time I was buying 4.4x, 40% XIRR in 4.5 years. So what exactly happened over here?
So Ipca we all know, it's a very famous pharmaceutical company. 2009 to 2014, post 2009 क्रैश. So 2009 में हमने बोला ना इंफ्रा, रियल एस्टेट और टेलीकॉम ये सब स्टॉक बढ़ रहे थे, ये स्टॉक इग्नोर थे, कोई देख ही नहीं रहा था, इनमें डीप पेसिमिज्म बिल्ट हो गया था, कोई नहीं देख रहा था. तो बहुत सारे फार्मा कंपनीज ने अच्छा स्टॉक बढ़े वो, इंक्लूडिंग उसके अलावा फिर FMCG भी बहुत बड़े, जैसे ITC बहुत बड़ा उस टाइम. तो ये 30 रुपये से 443 गया था, 15x इन 5 years, 2009 to 2014. ओके, फिर क्या हुआ 2014 के बाद, ये हुआ, इसका पिक बन गया वहाँ पे 450, और उसके बाद कुछ बढ़ा ही नहीं है. एंड देन सब गड़बड़ हुआ, वो पीक पे ही सब गड़बड़ होता है. वो US FD के कुछ वार्निंग आ गए इसको, इसके कुछ प्लांट्स भी बंद हो गए, सब काम बंद हो गया उधर, तो स्टॉक बहुत टूटा. एंड अलर्ट्स आए उसको, 2 plants alert in 2015, then MP के प्लांट पे भी आया बैन. देन आई वॉज बाइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, सो एक स्मॉल क्वांटिटी मैंने लिया 2015 में, थोड़ा करेक्शन हुआ उसके बाद. देन उसके बाद क्या हुआ, अभी बच्ची कुछ कसर थी, वो ब्रेक्जिट हो गया, क्योंकि ये UK को सप्लाई करता था, तो वहाँ पे भी इसकी लंका लग गई. और फिर ये सबसे बड़ा प्लेयर है मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग्स में. कौन सी दवाई होती है वो, कुनेन क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, है ना. ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट प्रोड्यूसर है. और कौन खरीदता है इससे, US नहीं खरीदता है. कौन खरीदता है इससे, वर्ल्ड बैंक खरीदता है. किसके लिए खरीदता है, वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए खरीदता है, वहाँ सप्लाई करता है, ये एक्सपोर्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है. और वहाँ पे भी बैन आ गया WHO का, मतलब बच्ची कुछ कसर सब गई इसकी. एंड चाइनीज रॉ मटेरियल के सप्लाई और प्राइस इशू आ गए, सब एक साथ आती है, मतलब आपकी लंका लगती है ना, तो सब तरह से एक साथ लगती है. आपने बहुत अच्छा किया, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था. आई वॉज कंटिन्यूसली बाइंग एंड दिस इज प्राइस एडजस्टेड, बिकॉज उसको फिर वो बोनस है, शायद स्प्लिट हुआ है, 2:1 का स्प्लिट मैंने लिया है. उसके बाद भी कुछ हुआ है एक और, वो नहीं किया एडजस्ट मैंने. अब नंबर्स की बात कर रहे थे हम ना, अब नंबर्स देखो आप, 2014-15 राइट. लुक एट रेवेन्यू 1567, 2010 to 13 3282, और रेवेन्यू कितना बढ़ा, 2x हुआ. और प्रॉफिट कितना बढ़ा, 2.33x, 205 करोड़ से 479 करोड़, 479 करोड़. स्टॉक कितना बढ़ा था, 15x. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट, 2014 से 2021 के बीच में टॉप लाइन बढ़ा 1.64, ओके, ऑलमोस्ट 7 years. बॉटम लाइन बढ़ा उससे ज़्यादा 2.37x, और स्टॉक कितना बढ़ा, 2x, यहाँ से भी 2x हुआ. बट वो पीरियड जो था ना 2014, 15, 16, एज आई सेड, वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. एंड दे यूज्ड टू डू कॉन कॉल्स, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दोस कॉन कॉल. एक ही क्वेश्चन मेरा रहता था, भैया US FD का कब निकल रहा है. लगता था एक US FD का निकलेगा तो शायद इसका भला होगा. सो 16, 17, 18 ये पीरियड में अगर आपने खरीदा और एवरेज प्राइस भी लिया ना, सो इट इज़ 4.4x, 40% CAGR. वो बढ़िया हेल्दी CAGR है, अच्छा कंपनी था. बैलेंस शीट भी बढ़िया है, कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं है, आप लोग CA हैं, सब समझिएगा आपको, है ना. फिक्स एसेट्स बढ़ रहे थे इसके, और भी बढ़े बाद में. कैश फ्लो भी बढ़िया था वो साल में, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन कर रहा था वो. और बाकी कॉर्पोरेट एक्शंस आप देखोगे तो वो बराबर बायबैक करता है, बोनस दिया है, डिविडेंड देता था रेगुलर, सब कुछ करता है. सो 4.4x ऑफ कोर्स. एंड क्या हुआ, वो US FDA का कभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ. 2020 में कोविड हो गया, और वो ट्रम्प थे उस टाइम प्रेसिडेंट, लास्ट टाइम था उनका, उन्होंने जाके टीवी पे अनाउंस कर दिया, ये जो दवाई है मलेरिया वाली, एंटी मलेरिया, ये कोविड में काम करती है. भाई साहब इसकी धूल भी बिक गई. हाँ, मतलब इतना मार्जिन आया था वो साल तो. और वो होता है ना, पिक कैसे पहचानेंगे, अभी साहब बोल रहे थे ना, किसी को पता नहीं होता है, हम इनसाइड में पिक रेवेन्यू, पिक प्राइस, पिक प्रॉफिट, पिक प्राइस एंड सुपर ऑप्टिमिज्म. वो साल का ऑप्टिमिज्म आप देखेंगे ना तो लग रहा था अगले 10 साल तक ऐसे ही ग्रो करने वाला है. वो टॉप बना वहाँ पे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. नाउ द सेकेंड केस स्टडी, ओके, जस्ट रिवर्स ऑफ इट. 2021 में उसका टॉप बना, इधर बेचारा ये स्ट्रगल कर रहा था सेक्टर. कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको, मार्केट किसी न किसी सेक्टर को, कंपनी को इग्नोर कर रहा होगा.
ये होटल इंडस्ट्री था। मार्च अप्रैल 2021, क्या था मार्च अप्रैल 2021 में? सेकेंड वेव था और बहुत डेंजरस था, है ना। पर्सनली वी वुड हैव लॉस्ट आवर नियर डियर वन फ्रेंड सर्कल में, कहीं ना कहीं किसी न किसी को लॉस वही होगा। बहुत ही डेंजरस था, कोई सोच ही नहीं सकता बाहर जाने का। होटल में तो जाने की सवाल ही नहीं है, 10% का भी उसका ऑक्यूपेंसी नहीं था। ये टॉप क्लास होटल्स थे जो मैंने 10 लिस्ट किए लिस्टेड में से। ऑलमोस्ट 55,000 रूम्स हैं इनके, 5 स्टार्स है मोस्टली उसमें। और अगर थम रूल भी लूँ 2 करोड़ का एक रूम लूँ तो 1,10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी तुमको 19,000 करोड़ में मिल रहा था मार्केट कैप पे, और 10,000 करोड़ का डेट, मतलब 30,000 करोड़ में 1,10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। एक गुज्जू होगा तो कभी मना नहीं करेगा, बोले भाई तो वही बहुत बढ़िया है, चोखो डील। और इप्का का मार्केट कैप क्या था? 27,500 करोड़। यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा 10 कंपनी मिल रही थी विथ आइकॉनिक ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, मतलब इंडियन होटल वगैरह के ब्रांड्स, और उसके होटल की लोकेशन देखोगे तो घूम जाएगा दिमाग। फिर क्या हुआ? अगस्त 2022, जस्ट 1 साल और कुछ महीने हैं, वो 19,000 का 71,000 हुआ, वो 27,000 का 23,000 हुआ। ऑक्यूपेंसी बढ़ गई 70-75%। उस टाइम में मैंने काफ़ी ट्वीट किए थे जब वो सेकेंड वेव चल रहा था, मैंने दिस इज द सेक्टर शुड नॉट अवॉइड। और अभी दिसंबर में कितना है वो? 19,000 का, सेम वही लिस्ट है, 1,94,000। एंटायर बास्केट इज अप 10 टाइम्स 3.8 ईयर्स में। सेलिंग द ऑप्टिमिज्म, एसएमई मेनिया। एसएमई में बहुत लोग घुसते हैं, बहुत मतलब प्रेम हो गया उससे, क्योंकि बहुत बिल्टअप हुआ उधर स्टोरी, है ना। ये 2018 का स्टोरी उनको पता नहीं है। तो 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ना, वो एक नॉर्मल गाय था, ये एकदम एसएमई का इक्विवेलेंट समझ लो तुम। 2017 में वो बादशाह हो गया दिसंबर में, एकदम आई एम द किंग। 2018 जब आया ना जुलाई, तो लुंगी बची सर, किस्मत से वो लुंगी बच गई, है ना। सो जब ये मेनिया चलता है ना, पागलपन, और साहब अभी बोल रहे थे कि हमको हिंड साइड में पता होता है, एक्चुअली यहाँ आप देखोगे तो समझ में आएगा आप कंपनी कैसे लेना शुरू करते हो। एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला खतरनाक एग्जाम्पल है, खतरनाक एग्जाम्पल है। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कंपनी, 5 कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत पुश हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अच्छे इन्वेस्टर्स भी थे इसमें, QIP वगैरह सब हुआ है इसका। ये प्रमोटर ने कितना रेस किया? ऑलमोस्ट 47 करोड़ 2018 मई 11, बस पीक पे था ये, 140 रुपये का इशू लेके आया था। इसको क्रिसिल का रेटिंग था, नथिंग अगेंस्ट क्रिसिल, कर सकते हैं मिस्टेक, एक क्रिसिल का रेटिंग था, और जो बहुत समय बाद तक रहा। 91 करोड़ के डेट का फैसिलिटी था इसको। आई थिंक 50-60 करोड़ का चूना तो यूनियन बैंक ने ही लगाया इसने। ये भाग गया, ये प्रमोटर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं ये किधर गया। और ये कंपनी में ये 2 लोग हैं ना, ये प्रमोटर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं ना, क्योंकि आप पिक ऑप्टिमिज्म में होते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं, अरे कल तो बढ़ने वाला भाई है, इसका IPO लेंगे ना तो सीधे पैसे बनेगा। वो पिछले वाले में मेरे पड़ोसी ने बनाया था, मैं नहीं छूटना चाहिए अभी। ये आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की प्रोफाइल देखो। फर्स्ट वन वॉज बॉर्न ऑन 1993, 2018 में कितने साल का होगा वो? 25 साल का। दूसरा वाला 92, 26 साल का, है ना। वो पहले वाले का बैकग्राउंड क्या है? ही इज ए कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड क्रिएटिव। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उनके रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस और उनके प्रेजेंटेशन से उठा के डाला हुआ है। हाँ, इनके फोटो भी वहीं से डाले हुए हैं, ये कुछ भी मेरे मन से नहीं डाला है। ही creative personality by passion. He has a sound knowledge and experience in GST and taxation. He appointed, अभी यहाँ तो ग्रामर भी गया है इसका, as independent director of the company with an objective to offer the best of his skill in every domain. Currently, he is pursuing MBA from Symbiosis and carrying out business of distribution of soft drinks in Mathura and Vrindavan region of Uttar Pradesh. भाई साहब वो ट्रक लोडर है, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। और वो प्रमोटर है ना 100 करोड़ का चूना लगा के भाग गया, अभी तक पता नहीं है, ईडी ढूंढ रहा है उसको। दूसरा वाला, ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम पूसा इंस्टीट्यूट, स्लाइटली बेटर। ही इज साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड, ही इज साउंड, फिर वापस ग्रामर गया, ही इज
sound academic background with rich experience in engineering that shall be helpful for the company to merge more strongly. Currently he is working in Jindal Steel and Power Limited. ये जूनियर लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया था, है ना. इसका एक पार्टी का फोटो भी है ना, ये भी मैंने उनके चैनल से, अभी भी एक्टिव है चैनल, है वहीं से उठाया, कल ही उठाया ये मैंने. होपफुली चलेगा यहाँ पे, आवाज आएगा क्या? एक मिनट, आवाज के बिना मजा नहीं आएगा. हाँ आया, ये मैंने स्लो मोशन में चलाया, आगे फास्ट है. कॉकटेल पार्टी है इसका, छोटा मैंने कट करके लगाया. ये प्रमोटर है, ये उसके सब साथ वाले हैं. So if you are not at the gate, you are going to foot the bill. ये लोग डांस कर रहे हैं, पैसा किसने दिया है? वो 100 करोड़ का जो पैसा है ना, वो सब शेयर होल्डर्स का है. ये भाग गए. Just last 2 slides. Okay. Framework for buying the pessimism. Pessimism हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना. तो पहला पॉइंट तो है सेक्टर और कंपनी आउट ऑफ फेवर. ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, कोई देखना नहीं चाहता है. और सबसे सिंपल क्राइटेरिया लास्ट में लिखा हुआ है नीचे, यू डू नॉट वांट टू ओपन योर पोर्टफोलियो. सिंपल, पोर्टफोलियो ओपन करने की इच्छा नहीं हो. वो ग्रीन कलर है, रेड होना चाहिए. अपने दिमाग में वो रेड है. जब पोर्टफोलियो का ओपन नहीं करते, जब रेड होता है, लेकिन अपने को ग्रीन देखना है उसको. No one wants to talk about it, hesitation to post about the company sector as personally. People may laugh. अरे तू क्या पागल है क्या, उसमें घुसा तू, देखो और नीचे आ गया. कर लिया था ना तूने, इफ्का बहुत तेज बन रहा था, वो और गिर गया, और गिर गया. वो वैल्यूएशन सेट हिस्टोरिकली लो लेवल, नो देन एंड, यस देन गो अहेड. तो फिर सर्वाइवेबिलिटी टेस्ट लगाने का एक. सो सर्वाइवेबिलिटी टेस्ट क्या है? मेनी प्लेयर क्लोज शॉप. तो ऑफकोर्स जो बाकी के बचे वो बहुत पैसा बना सकते हैं. कैश फ्लो इम्प्रूविंग, डेट्स स्टेबलाइजिंग. वही इंफ्रा कंपनी के साथ हुआ 2010 में, जब बाकी की सब इंफ्रा कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो गई, पैसा ही नहीं था. स्टील के साथ हुआ 2017 में, तो जो स्टील की कंपनी बची थी वो बहुत पैसा बनाया उन्होंने. सो इज देयर ए परमानेंट डिसरप्शन? परमानेंट डिसरप्शन है तो बात ही खत्म हो जाएगी, खत्म. क्योंकि परमानेंट डिसरप्शन है. अपन टाइपराइटर का इंडस्ट्री पेसिमिज्म से जा रहा है, अपन टाइपराइटर 91 में जाके खरीद नहीं सकते उसको, वो कंपनी को, क्योंकि मरने ही वाला है वो. परमानेंट डिसरप्शन है वो. डेट लेवल, तो डेट लेवल कितना हाई है, मैनेजेबल है कि नहीं है? ये तो डेट से ही मर जाएगा वो. नॉट मैनेजेबल, लगता है कि यार इसने तो कंपनी खोलने के बजाय बैंक खोलना चाहिए था, इतना डेट लिया है इसने, तो नहीं लेने का. फिर यस मैनेजेबल. कैश फ्लो ऑफ 5 गुड ईयर्स, मतलब जब अच्छा काम कर रहा है तब कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि बुरे समय में तो कैश फ्लो उसका बिगड़ ही चुका होगा. तो कैश फ्लो कैसा है वो 5 ईयर्स में? अगर अच्छा नहीं है तो फॉरगेट इट, क्योंकि अभी जब खराब समय में भी खराब कर रहा है, अच्छे समय में भी खराब कर रहा है, तो इसमें पैसा बनने के चांसेस कम होंगे. लेकिन अगर कैश फ्लो हेल्दी है तो देन लुक एट इट. वो कंपनी में जहाँ पे पेसिमिज्म हो रहा है, जहाँ पे रेड है, जिसको हम ग्रीन देखते हैं, अगर वहाँ लार्ज सेलर है, ये एक और छोटा सा एक टेक्निकल पैरामीटर हो सकता है. लार्ज सेलर है, क्योंकि लार्ज सेलर उसको कहाँ से लेके आएगा पता नहीं, अभी वो कितना नीचे लेके जाएगा, वो बेच रहा है, वो बेचते जाएगा. तो अगर है तो वापस से गो बैक, फिर रिकंसिडर करो. परमानेंट डिसरप्शन, डेट लेवल, कैश फ्लो, लार्ज सेलर. देन नहीं है तो फ्यू सर्वाइवर्स हैं क्या उस सेक्टर में? बचने वाले बहुत ही कम लोग हैं क्या? जैसे ट्रांसफार्मर में हुआ 2021 में, बहुत कम बचे. 8 साल का पेसिमिज्म था, 2021 में वो खत्म हुआ. वहाँ से कंपनी ऑन एन एवरेज 10 बैगर्स हुए हैं, 70, 80, 90 बैगर भी हुए हैं. यस, तो फिर उसके अलावा गुड टू हैव पैरामीटर्स में इज मैनेजमेंट बाइंग शेयर्स, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन, जो होटल इंडस्ट्री में हुआ. ओके, देयर वाज अ कॉस्ट रिडक्शन, जबरदस्त कॉस्ट रिडक्शन था. अगर आप उस टाइम के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनके कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, तो कंसोलिडेशन हो रहा है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, डिमांड इंप्रूव हो रहा है. लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो जब अच्छा होगा तो सारी कैपेसिटी को यूज कर सकेगा वो. बढ़िया, देन यू गो अहेड. यस, and of course corporate governance very critical in all this. So corporate governance, balance sheet, cash flow and all this. And then selling the optimism. Sir, we need
need to start the next session. Just one minute, है ना. Framework for selling the optimism, है ना. Parameters for selling the optimism is sector or company is in favor. बहुत बढ़िया चल रहा है सब. Everyone wants to talk about it. Social media cluttered about company sector, semi sector. 2018 में भाई 5 crore के IPO में लगाया कि नहीं लगाया तूने? No and yes. Then peak revenue, peak margin, peak price है क्या वो इप्का का 2021 का. सो डेमाइस टेस्ट लगाओ, वहाँ पे सर्वाइबिलिटी था. तो रिसीवेबल इंक्रीजिंग, कैश फ्लो डिटोरियरिंग, डेट गोइंग अप, देन न्यू कैपेसिटीज आर कमिंग. यस, तो फिर न्यू प्लेयर्स आर ज्वाइनिंग. शॉर्टेजेस का रिपोर्ट्स आ रहा है क्या? बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट 25 साल का कवरेज दे रहे हैं क्या उस सेक्टर को? मैनेजमेंट सेल कर रहा है क्या? QIP लेके आ रहा है? बहुत सारे कंपनीज में हो रहा है वो. कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्या? न्यू डील सेट हायर प्राइसेस हो रहे हैं क्या? हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी है क्या? डिमांड डिक्लाइन हो रही है क्या? सोशल मीडिया डिस्कशंस हो रहा है क्या? फोमो है क्या? ये सब है. तो गो अहेड एंड से गुड बाय. ओके, दिस इज समरी एंड थैंक यू सो मच. Sorry for little longer. Thanks very much, sir. We had an insightful session on buying the pessimism and avoiding optimism.